Hi everybody. I hope you all are fine and doing well. My dear students, I hope you are now recharged after half yearly because you got a good break, holidays, and now be ready to complete your syllabus because CBSE has released the new paper pattern which was very much weighted, and this paper is a very much changed as per the last year's paper, because see, number of questions is increased and one more very new thing is added, that is case study, which was not in maths earlier. We have even not seen. And more than that, the weightage of the marks, like earlier it was 2 marker, 4 marker and 6 marker. Now there are 3 markers and 5 markers. Means what? The questions which was like in 4 marks, now that same kind of questions will be in 3 marks. Though there is overall no change, but there is some internal change in some problems. Now children, today I am going to discuss the CBSE paper pattern, and I will also compare the old pattern, old marking distribution and the new marking distribution. And after some days, in my next videos, I am also going to give you the blueprint which I have made. So please let us come and see the detailed analysis of CBSE sample paper. Okay, so children, here is the sample paper, the most wanted sample paper, or I can say the most weighted sample paper. In this sample paper, we can see the time is 3 hours, already it was there, and the maximum marks is 80. Now look at the major changes. What are the major changes in this? Now this year the question paper will be divided into 2 parts, very important. These are the 2 parts, part A and part B. Earlier it was not there. And part A will contain 24 marks, and this is objective type part. And part B, this is descriptive, this will carry 56 marks. It is written in the second instruction. What? Part A has objective type questions and part B has descriptive, means जिसमें आपको कुछ लिखना पड़ता है. Now again, see, come here for part A. Part A again consisting 2 sections. So very much changes there. Earlier, see, part A means though there was no parts, but again if there were parts, objective and subjective. Now in the part A there are again 2 subsections, sections 1 and 2. Look here, section 1 and 2. What is there in section 1? Section 1, it is written over here, it comprises of 16 very short answer type questions. And section 2 totally changed. It is of case study. 2 questions will be of case study, and in every question there will be 5 parts. Out of that 5 parts, 5 MCQs it is written, 5 MCQs, and out of that 5 MCQs you have to do 4. So means there is internal choice. Both the case studies are important. In case studies there is no internal choice. The internal choice is within the question. So in part A, section 1 will be of 16 marks and section 2 will be of how many marks? It will be of 8 marks. 4 के आपको 4 के 2 आपको क्या करने हैं? MCQ करने हैं. 4 करने हैं फर्स्ट केस स्टडी में और 4 करने हैं सेकेंड केस स्टडी में. दिस इज अबाउट पार्ट A. Let us come to part B. This is descriptive part. See, in this descriptive part again, if I see, this is again divided into 3 parts. How 3 parts? 2 marker, 3 marker and 5 marker. Now this 3 marker and 5 marker is very new for us. Earlier there was 4 marker and 6 marker. Now that is not there. There is no 4 marker and no 6 marker.
why it is so important? See, while you will when you will revise it, see, you will go for old papers, because no new paper is not yet we don't have any kind of new sample paper, though later on there will be some new sample papers, but still many times we go for the old questions. So within that old questions we will see 4 markers and 6 markers, but this year will not have any 4 marks question or 6 marks. It is now of how many? 3 and 5. So you have to be very very careful. अब देखते हैं आपके पेपर का लुक कैसा होगा. देखो, इस पेपर का लुक ऐसा रहेगा इस बार, ठीक है ना. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ये होता ही है इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस. सिर्फ इंटरनल चॉइस है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं. सो दिस वे यू कैन सी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट अकॉर्डिंग टू मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन आई विल डिस्कस लेटर ऑन. फर्स्ट लेट अस गो फॉर दिस पेपर. इस पेपर को जरा देखते हैं. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 और नॉट. आसान सा क्वेश्चन है और इसी में इंटरनल चॉइस भी है. देखो, इसके इंटरनल चॉइस में व्हाट इज देयर? इंटरनल चॉइस में हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. ओके, चैप्टर की इंटरनल चॉइस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा. चैप्टर में ही इंटरनल चॉइस है, रिलेशन फंक्शन पूरा एक चैप्टर है, उसी में इंटरनल चॉइस है, कहीं बाहर से कोई इंटरनल चॉइस नहीं है. सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन ऑफ द रिलेशन एंड थर्ड भी रिलेशन फंक्शन का ही है. देखो, ये भी रिलेशन फंक्शन का है और इसमें भी इंटरनल चॉइस, दोनों ही रिलेशन के हैं, दोनों में इंटरनल चॉइस है. एंड तो दिस वे ये चैप्टर के सारे जितने भी उसके कंटेंट्स होते हैं, जितने भी उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स या फिर जो भी उसके में मेन चीज़ें होती हैं, उन सबको कवर करने के लिए ये इंटरनल चॉइस दे दी जाती है. मीन्स यू हैव नॉट टू लीव एनीथिंग, आपको कोई भी स्किप नहीं होना है, कोई भी टॉपिक. नाउ इफ आई गो फॉर दिस फोर्थ क्वेश्चन इज ऑफ मैट्रिक्स. गुड, मैट्रिक्स का है ये. एंड फिफ्थ भी मैट्रिक्स का ही है और मैट्रिक्स में ही इंटरनल चॉइस है, बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. देखो, मैट्रिक्स में ही इंटरनल चॉइस इन्होंने दे दी है. नाउ लेट अस मूव फॉर अनदर. ये देखो, अगेन 7th में भी इंटरनल चॉइस है. देखो, इंटीग्रेशन के साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल, बिकॉज जो टॉपिक है ना, टॉपिक के अंदर ही इंटरनल चॉइस है, कहीं बाहर से कुछ नहीं है. और ये 1 मार्कर अगर हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसा 1 मार्कर अभी तक हमने देखा नहीं था. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस. एरिया बाउंडेड को ज़्यादातर हमें अभी तक वट एवर वी हैव सीन टिल नाउ, ये 6 मार्कर में ही आता था एरिया बाउंडेड, बट दिस इज ऑफ 1 मार्क्स. गुड वन, क्वेश्चन इज वेरी गुड. नाउ इफ आई गो फॉर अनदर, देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी 1 मार्कर बन गया. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये दोनों के दोनों इंटरनल चॉइस के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 मार्कर. नाउ नेक्स्ट वेक्टर का है और फिर से वेक्टर का ही है. ये तो हो जाते हैं 10 क्वेश्चंस. देखो, एंड ये सारे, ये प्लेन का, वेक्टर का, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल रहे हैं. एंड व्हाट कैन आई सी. नेक्स्ट में मैं आती हूँ. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लुक एट दिस सेक्शन सेकेंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच चेंज. ये बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए है. व्हाट इज हियर? 2 केस स्टडीज आर गिवन टू यू. इसमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 है एंड दिस क्वेश्चन नंबर 17 हैज़ 5 क्वेश्चंस. सी, इसमें 5 प्रॉब्लम्स आपके पास हैं एंड आउट ऑफ दिस 5 यू हैव टू डू एनी 4. यस, डेफिनेटली MCQ यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा, फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो होते थे वो सीधे MCQ हो जाते थे. फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, कई सारी चीज़ें थी. अब ये कुछ भी हमें देखने को इसमें नहीं मिल रहा है. दिस पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, मैक्सिमम मिनिमम में से केस स्टडी बनाया गया है इसमें. ये मैक्सिमम मिनिमा डिफरेंशियल एप्लीकेशन का है और सेकेंड पार्ट भी इसी का है, रेट्स वेट्स का. ये जो भी है ये भी आपका किस पे बेस है? ये अब इसमें लिखा हुआ है, देखो, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको मिलेंगे ये
MCQ। ये MCQ अब आपको ये मिलेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस मूव टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ध्यान देना इस पर। अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हम आते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सी, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ, ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। देखो जो डिलीटेड सिलेबस दिया था उसमें तो सिर्फ डेफिनेशन दी थी, रेंज एंड डोमेन एंड रेंज तक ही उसमें दिया था। बाकी ये जो पार्ट है उसमें डिलीटेड लिखा गया था, बट ये क्वेश्चन इसमें है तो क्योंकि ये फर्स्ट या सेकंड एक्सरसाइज में आ जाता है, सो दिस क्वेश्चन इज देयर। और ये भी 2 मार्क्स का है। ये CBSE का सिंपल पेपर है। बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। मीन्स आपको कुछ न कुछ पढ़ना ही है उसमें। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में नहीं आता है। ऑलराइट, देन 20 वाला क्वेश्चन तो मैट्रिक्स का है। यू कैन डू दिस वेरी इजीली। अब कंटिन्यूटी में से में भी आया है। देखो ये 2 मार्कर कंटिन्यूटी से है एंड कंटिन्यूटी का तो सी ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। दिस इज ट्रेडिशनल क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का ट्रेडिशनल क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ टेंजेंट नॉर्मल्स, और फिर से आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी इंटरनल चॉइस है। ये 2 मार्कर है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड इफ़ आई गो टू, ये डिस्क्रिप्टिव है, ये बड़े ही क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन नहीं है ऐसे। हाँ, ये भी ध्यान देना। अब आते हैं सेक्शन 4। दिस इज ऑफ 3 मार्क्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। रीजन, इसका रीजन ये है, देखो दिस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है कभी कभी ये 6 मार्क का भी आया हुआ है, ये 6 मार्कर में भी आया हुआ है, और आज ये आपको देखने को मिलेगा 3 मार्क्स में। और ये वाला देखो डिफरेंशिएशन, ये तो हमेशा ही 4 मार्क्स में आता था एंड नाउ इट इज़ ऑफ 3 मार्क्स। आपको पढ़ना बहुत सीरियसली है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखो डिफरेंशिएबिलिटी, अब ये भी आ गया। डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। एंड नाउ इफ़ आई गो टू द अगेन ये लॉन्गर वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें मैं जाती हूँ। देखो फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एरिया बाउंडेड, एरिया में से थोड़ा सा पार्ट तो डिलीट कर दिया गया है, बट इफ़ आई सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत छोटा या बहुत आसान नहीं है ये 3 मार्क्स का। एंड अब आते हैं सेक्शन 5 पर। ये इजी होता है, दिस पार्ट इज इजी। देखो ये 15 मार्क्स जो हैं, ये 15 मार्क्स गेन होने ही चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसे मार्क्स हैं जहाँ पर कि हमारे लिए आसानी होती है। ये मार्क्स बड़े आसान होते हैं। 5 मार्क्स का ये है एंड 5 मार्क्स का इफ़ आई गो फॉर दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। तो ये जो 15 मार्क्स यहाँ पर हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इजी होता है एंड आपका जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन होता है वही आता है इसमें। देखो एक चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान देना, लीनियर प्रोग्रामिंग जब आप LPP पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये कंस्टेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिए, बट सिलेबस में वर्ड प्रॉब्लम डिलीट हो गई ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, बट उसमें लिखा हुआ है अनबाउंडेड एरिया नहीं आएगा, बाउंडेड एरिया आएगा। ये लाइक ये बाउंडेड एरिया है, ये भी उसका इंटरनल चॉइस में दे दिया है इसने 5 मार्क्स में। तो 5 मार्क्स में इस पेपर में तो फिलहाल दिस इज़ गिवन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर। मैं आपको इस पेपर को उसमें दूंगी, ये डिस्क्रिप्शन में मैं ये PDF आपको शेयर करूंगी। यू विल डू दिस। नाउ आई विल गो फॉर अनदर पार्ट। मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है इसका। ऑलराइट, विल गो फॉर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ सी द न्यू पेपर पैटर्न। इसमें दो चेंजेस हैं, मैंने वो यहाँ पर बनाया हुआ है। ओल्ड मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ये भी लिखी हुई है एंड आई विल शो यू द न्यू मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू। सी व्हाट वाज देयर, 1 मार्कर, 1 मार्कर्स अर्लियर, 1 मार्कर्स हाउ मेनी क्वेश्चंस वे देयर, 20 क्वेश्चंस थे। और अब जो 1 मार्कर आएंगे, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। 1 मार्कर अब कितने के हैं, 24 मार्क्स के हैं। तो वो थे 20 के और ये होने वाले हैं 24 मार्क्स के। एंड इफ़ आई गो फॉर दिस, देखो ये जो 2 मार्कर थे, ये जो 2 मार्कर हैं, 2 मार्कर यहाँ पर
सिक्स क्वेश्चन होते थे, 2 मार्कर 6 क्वेश्चन होते थे, और अब 2 मार्कर कितने होने वाले हैं, 2 मार्क्स के अब होने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के। अभी मैंने आपको आई हैव शोन यू द पेपर, क्वेश्चन पेपर हम देख चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दैट देखा था आपने कि इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन यू नीड। देन 4 मार्कर ये 6 क्वेश्चन थे, और 6 मार्कर 4 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल हाउ मेनी क्वेश्चन हुए देयर, 36 क्वेश्चन होते थे। और अब हम देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर बढ़ा हुआ है। दिस इज हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर, 44 क्वेश्चन होने जा रहे हैं। ऑल राइट, इंस्टेड ऑफ 36 क्वेश्चंस नाउ यू हैव टू डू 44 क्वेश्चंस। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखते हैं, देखो डिस्क्रिप्टिव पार्ट यहाँ पर भी हाउ मेनी 20 है, और डिस्क्रिप्टिव पार्ट यहाँ पर भी कितना था, देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट था, ये था देयर वेर 16, बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, यहाँ पर 16 डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चंस होते थे, और अब होने वाले हैं कितने, अब होने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में दीज मेनी 20 क्वेश्चंस। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लाइक टाइम टेकिंग होगा या हम सोचें कि बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इट्स नॉट देयर। द पेपर इज़ गुड, पेपर बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंगली, दो आई विल गिव यू फुल टाइम। जब भी आपको किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े, जहाँ पर भी डाउट होते हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। एंड व्हाट वी विल डू, जैसे जैसे हम चैप्टर करेंगे तो वी विल सी द प्रॉब्लम्स फ्रॉम CBSE पेपर ऑल्सो, क्योंकि वहाँ से हम इसको जोड़ते हुए जाएंगे। लाइक ये 2 मार्क्स का आ सकता है, ये 3 मार्क्स का आ सकता है, या 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में इसकी पॉसिबिलिटी है। दैट वी विल डिस्कस। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक वन व्हाट ब्लूप्रिंट, मैं वो ब्लूप्रिंट भी आपको दिखाऊंगी। सो चिल्ड्रन, आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडे, विल गो फॉर नेक्स्ट सेशन।